In the second video lecture, we are going to discuss about the first part of unit 1, that is unit and scale of energy use. So we will start with the energy. Now, what is energy? Energy is the capacity to work. किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं. एनर्जी के एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि प्रोपेलिंग एन ऑटो रिक्शा और हीटिंग अ होम और लाइटिंग अ रूम इज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी. Many forms of work involve an energy transformation. You can say a light bulb transform electrical energy into heat and light energy, or an IC engine converts chemical energy into heat and mechanical energy, electrical energy into heat and mechanical energy. Or third, a dynamo changes mechanical energy into heat and electrical energy. मीन्स कि एक लाइट बल्ब जो है क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. एक आईसी इंजन जो हमारे टू व्हीलर और फोर व्हीलर में जो इंजन होता है वो क्या होता है, पेट्रोल डीजल क्या हो गया, हमारा केमिकल हो गया. तो केमिकल एनर्जी को हीट और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. और थर्ड एग्जांपल इज जो हम लोग साइकिल चलाते थे बचपने में, तो पिछले पहिए में हम एक डायनमो लगाते थे. तो जब पिछला पहिया घूमता था उससे डायनमो घूमता था, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती थी उसको तार से हम जोड़ करके आगे एक बल्ब जोड़ देते थे अपनी साइकिल में. तो डायनमो से क्या होता था, वो बल्ब हमारा जल जाता था. तो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. सिर्फ एनर्जी एंड वर्क आर टू साइड्स ऑफ ए क्वाइन. दे आर मेजर्ड विद द सेम यूनिट. वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है, दैट इज जूल. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वी कैन से, these are the different forms of energy. Means mechanical energy, it can be kinetic or potential energy, thermal or heat energy, chemical energy, electrical energy, nuclear energy. Sixth one is electromagnetic energy, and seventh is gravitational energy. The SI unit of energy or work is joule. The joule named after the English physicist James Prescott Joule. Joule discovered the relationship between heat and mechanical work, which led to the development of the laws of thermodynamics. तो 1 joule जो होता है, 1 joule equal to the work done by force of 1 Newton moving an object 1 मीटर. किसी भी ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन का फोर्स लगा करके उसको 1 मीटर तक ले जाने पे तो जो लगती है एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 1 जूल. और 1 जूल इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म, 1 जूल ऑल्सो इक्वल्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. It can be written as joule is equal to coulomb into volt. ठीक. तो the now the power. Power P, we can denote the power with the P. Power is the rate at which energy is transferred or converted. Thus, power equals work divided by time. P is equal to W upon T. The SI unit of power is the watt. Watt himself coined the term horsepower to characterize the benefit of his steam engine. 1 watt equals 1 joule per second. W is equal to J by S. 1 watt equals 1 volt times 1 एम्पियर. तो मैकेनिकल उसमें कर सकते हैं, वॉट इज इक्वल टू होता है जूल पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सेंस में वॉट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर. Incandescent light bulb use electrical energy at a rate of 40 to 150 watt.
Now the force. The physicists have identified four fundamental forces or interaction. We will discuss these four types of forces in the second unit, that is nuclear energy. In the nuclear energy section, we will discuss about the four universal forces. These are electromagnetic force, gravitational force, and strong and weak nuclear forces. The electromagnetic force acts between electric charges. The gravitational force acts between masses, and the strong and weak forces hold together atomic nuclei. The push and pull of these forces manifest an energy. इस फोर्स को जब हम पुश करते हैं तो पुल करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी मैनिफेस्ट मीन्स उत्पन्न होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, the electromagnetic force pulls electrons through a conductor, creating electric current. Gravity pulls water through the turbine at a hydraulic plant. These are the examples of these kind of forces. The SI unit of force is Newton. Newton, the unit is the force that accelerates a 1 kilogram mass at the rate of 1 meter per square per second. The force of earth gravity, फोर्स का इस सेकंड स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर जो दिख रहा है, तो न्यूटन का क्या हो गया, एन इज इक्वल टू के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन ए 70 kg ह्यूमन इज अबाउट 686 न्यूटन. अगर 70 kg का कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है जो अर्थ की ग्रेविटी का, तो वो लगता है 686 न्यूटन. ठीक है. Now the Coulomb. The standard unit of electric charge is the Coulomb. You can denote it with capital C. Charles Augustin de Coulomb was a French physicist who discovered the relationship between electric charges, distance and force. The standard unit of electric potential is the volt. We can denote it with capital V. A volt is equivalent to 1 joule of energy per coulomb of charge, or we can say V is equal to J upon C. The standard unit of electric current is the ampere, or we can denote it with small a amp. French physicist Henri Marie Ampere was one of the main discoverers of electromagnetism. 1 ampere equals the displacement of 1 coulomb of charge per second, or we can say A is equal to capital C by S. Most household circuit pull less than 15 ampere. Now the British Thermal Unit, BTU, we can denote it with capital BTU or capital B with small t and U. The British Thermal Unit is commonly used to describe the energy content of fuels and the power of heating and cooling system. 1 BTU is the amount of energy required to raise the temperature of 1 pound of water by 1 degree Fahrenheit. 1 पाउंड पानी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो 1 BTU कहते हैं. There are several different definitions of the BTU.
based on the initial water temperature, but in general 1 BTU equals about 1055 joule, about 780 FTLB and about 0.3 watt hours. 1 BTU जनरली 1055 जूल के बराबर होता है। ठीक। नाउ द कैलोरी, हम जो एनर्जी जो जनरलाइज हम लोग वे में यूज़ करते हैं कि भैया इतनी कैलोरी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, इतनी कैलोरी बर्न हो गई, इतनी कैलोरी एक्स्ट्रा है, इतनी कैलोरी कम करनी है। तो ये जो कैलोरी हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम दो तरीके से नाप सकते हैं। एक तो हम कहते हैं स्मॉल कैलोरी और ग्राम कैलोरी, और दूसरा हम कहते हैं लार्ज कैलोरी और किलोग्राम कैलोरी। तो ये क्या होती है? जो स्मॉल कैलोरी होती है या ग्राम कैलोरी होती है, इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to increase the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम स्मॉल कैलोरी या ग्राम कैलोरी कहते हैं। द सेम थिंग इज़ विद लार्ज और किलोग्राम कैलोरी इज़ दैट energy needed to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius। 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लार्ज या किलोग्राम कैलोरी कहते हैं। ऑन एवरेज 1 कैलोरी इक्वल्स 4.18 जूल and 1 kilocalorie equals about 4.18 kilojoule or nearly 4 BTU। 1 कैलोरी हमारी 4.18 जूल के बराबर होती है, या 1 किलो कैलोरी 4.18 किलो जूल, या इसको नियरली अबाउट 4 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। जो न्यूट्रिशनल कैलोरी हमारी होती है वो हम किलोग्राम कैलोरी के ही रूप में उसको मापते हैं। ठीक है। अब ब्रिटिश थर्मल यूनिट की कुछ यूनिट्स हैं। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में हमारे था थर्म। तो ये दो हम नया वो पढ़ेंगे ब्रिटिश थर्मल यूनिट का, थर्म एंड क्वाड। तो थर्म जो यूनिट है we can denote it with small THERM or THM। It is equal to 10 to the power 5 BTU। 1 lakh BTU के बराबर होता है एक थर्म, and is approximately equal to the amount of energy released by burning 100 cubic feet of natural gas। एक थर्म होता है 10 to the power 5 BTU, या हम 100 क्यूबिक फीट नेचुरल गैस जलाने पे जो एनर्जी निकलती है दैट इज़ इक्वलेंट टू 10 to the power 5 BTU और 1 थर्म। क्वाड होता है, क्वाड इक्वल्स ए क्वाड्रिलियन और 1015 BTU इज़ यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग द एनर्जी बजट ऑफ होल कंट्री। ठीक है। तो जब लार्ज स्केल पे हमें एनर्जी के बारे में काउंटिंग करनी होती है, लाइक किसी कंट्री का एनर्जी बजट जब बनाते हैं तब हम क्वांट टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है यूएस गवर्नमेंट का, कि यूएस गवर्नमेंट का इतनी खपत इतनी इस साल में थी और इतनी खपत इस साल में आवश्यकता होगी। तो एग्जांपल दिया हुआ है, इन 1950 द यूएस consume 34.6 quad of energy। By 1970 total consumption grew to 67.8 quad। By 1990 84.7 quad, and by 2006 it was 99.9 quad।
This is the example how we can use terminology quad for energy. Now the thermal power is measured in BTU per hour, or often abbreviated is just BTU. Most heating and cooling rating in BTU are really BTU per hour, or 1 watt equals about 3.41 BTU per hour or 1 horsepower. There are some basic SI units as everybody know, dimension, basic units and symbol. तो लेंथ के लिए we use generally मीटर, सिंबल M, मास के लिए kg, किलोग्राम kg, टाइम के लिए सेकेंड S, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, वी विल डिनोट इट विथ कैपिटल A, टेम्परेचर केल्विन, तो डिग्री K से हम इसको डिनोट करते हैं. नाउ सम derived SI units like dimension unit is square meter, symbol is meter square. वॉल्यूम का यूनिट हो गया हमारा क्यूबिक मीटर, सिंबल इज मीटर क्यूब. स्पीड हम भी वो करते हैं मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर हमारा प्रेशर हो गया. प्रेशर हम जो है प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल. तो 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन अपॉन मीटर. वॉल्यूम फ्लो होता है जो हमारा वो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में होता है. तो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, तो मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड हो जाएगा. फिर मास फ्लो हमारा जो होता है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर सेकेंड. फिर डेंसिटी मीटर क्यूब. फिर फोर्स हमारा होता है न्यूटन में, तो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर एनर्जी होता है हमारा जूल, तो जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर. फिर पावर हम वॉट में करते हैं, वी कैन राइट इट वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड. एनर्जी फ्लक्स वॉट पर स्क्वायर मीटर. देन कैलोरीफिक वैल्यू जूल पर किलोग्राम, J अपॉन किलोग्राम. स्पेसिफिक हीट जूल पर किलोग्राम केल्विन, वी कैन राइट इट लाइक जूल अपॉन किलोग्राम इंटू केल्विन. वोल्टेज भी, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट, दैट इज इक्वल टू W अपॉन A. नाउ this is the different units for measuring energy. इसमें आप आ गया ब्रिटिश थर्मल यूनिट. तो जो हमने पहले बताया था, मैं एक बार ऐसे जल्दी आपको पढ़ ले रहा हूँ. एवरीबडी नोज अबाउट दीज थिंग्स ऑलरेडी. ए यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to raise the temperature of 1 pound of water by 1 degree Fahrenheit, equivalent to energy found in the tip of the matchstick. हीटिंग एंड कूलिंग इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है. तो 1 BTU इक्वल टू होता है 1055 जूल. फिर कैलोरी और स्मॉल कैलोरी जो होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस. तो ये कहाँ यूज़ होता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में यूज़ होता है. तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू द 0.00369 BTUs. द थर्ड इज फूड कैलोरी, किलो कैलोरी और लार्ज कैलोरी. ठीक, तो ये आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था. द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस. द फूड कैलोरी इज ऑफन यूज्ड when measuring the energy content of food. तो ये कहाँ न्यूट्रिशन में यूज होता है. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी 4.187 और 3969 BTU. ठीक, फिर आपका हो गया जूल. इट इज़ ए स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैन कैलोरी एंड मच स्मॉलर दैन ए BTU. ये कहाँ यूज होता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में. 1 जूल इज इक्वल टू 0.2388 कैलोरीज एंड
0.000948 BTUs. Next is kilowatt hour, an amount of energy from the steady production of consumption of 1 kilowatt of power for a period of 1 hour. ये हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में. ये होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.413 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स और 36 lakhs joule. Last is therm, a unit describing the energy containing a natural gas. तो ये हम यूज़ करते हैं होम हीटिंग अप्लायंसेस में. तो 1 therm इज इक्वल टू होता है 10 to the power 5 BTUs. This is the end of this video lecture. In the next lecture we will discuss about, in the next part, that is part 2 of unit 1, we will discuss about the mechanical equivalent of heat and heat energy conversion between heat and mechanical energy. Or if we have sufficient time, in the next lecture we will discuss about the electromagnetic energy. Thank you.